So in last class, we have seen certain landmark judgment of Supreme Court. And these judgments have a series of after a series of judicial pronouncement, they came into picture and set a certain landmark in Indian constitutional development. Like in the cases like Sankari Prasad versus Union Borubari case, Keswan Bharti case, Minerva Mills case, Inka Gandhi case, and after that, Inka Gandhi case, Shara Bano case, then Lily Thomas case, and then Chief Justice case, Puttaswamy case, and so on. So in this we have seen that they set a series of judicial pronouncement, like the definition of basic structure, we have seen limitation of amending power, parliament. So such kind of conclusive remarks we have got from these judgments. Like basic structure, it is nowhere mentioned in the Constitution of India, but it is a judicial innovation. Like amending power, limitation of amending power of the parliament. It is nowhere mentioned in the Constitution because Constitution doesn't define that to what extent it can amend. Constitution only defines that it can amend under Article 368. But to what extent it can amend, it comes from Minerva Mills versus Union of India in 1980. That the amending power itself is what? It is the amending power of parliament is limited. That parliament cannot amend to any extent, to certain limited extent. So in this connection, it is very important to understand the constitutional development, and in this regard, it is very important to kindly go and have a look on this development already we have. And apart from this also, there are other certain cases like Nagraj case, MC Mehta case, and other cases also. Like in last week, you can see that the right to access air and pollution, environment changes, climate changes. This is also your fundamental right in the Article 21. Supreme Court has recently pointed out. So you have to keep on updating things on in this regard. Okay. So now coming to our next topic, which is union executive. So executive, like legislature and judiciary. It is one of the organ of your government, like your government, three organs: legislature, judiciary. And what is executive? So legislative function and judicial function. There are two functions. And the residue of things, apart from this your legislative function and judicial function, the residue means जो अवशेष हुआ, that is your executive function. I'm getting my point.
executive function, the function executive function, again executive function is not defined, because the executive functions, it has a very wider scope, right from determination of government policy, initiation of legislation, social and welfare issues, foreign policies. Okay, these all things, it all come under the ambit of executive function. Are you getting my point? So the executive, union executive, and what is first we have to understand that what is executive. So government, it has three organs: legislature, judiciary, and executive. Legislature, the function is very clear, that in order to legislate a law, in order to frame a law, or a judiciary means in order to, you have to check the constitutional validity, whether a law is constitutional or not, unconstitutional or void in the eye of constitution, then it is the judiciary mistake. But the executive function, it has a very wider and extensive meaning again. So the residue, first you have to extract legislative function and then judicial function. Rest of the things, the residue which will rest, that will come under executive function. So government policy determination, initiation of legislation, social and welfare issues, foreign policy, this entire thing will come under executive function. Okay. So what is union executive? First we have to understand that there are four things, like the president, the vice president, council of ministers headed by prime minister, and attorney general of India. So according to the constitution, these four will come under union executive. The president, the vice president, council of ministers headed by prime minister and attorney general of India. So the position of the president is that he is the executive head. Executive head of the state. Executive head of the state. This is the position of president. At the same time, he is the constitutional head of the state, the president, head of the republic, first citizen of the nation, supreme command of all the defense forces. समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हम कह रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये चार लोग हैं, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. अब जो प्रेसिडेंट की जो संवैधानिक स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो क्या है?
that he is the head of the executive head of the state. इस स्टेट का, इंडियन स्टेट का कौन है हेड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हेड ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक किसको कहते हैं? रिपब्लिक किसको कहते हैं? जो हेरिडिटरी ना हो, है. और हेड ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, all the action, all the decisions have to be taken in the name of president. And the president of India directly head the executive head, so directly or with the head of the subordinates. So subordinate जो उनके ऑफिसर्स हो गए उसमें कौन हो गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. तो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो एंटायर पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव वेस्ट इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? यही एग्जीक्यूटिव, ये सारा जो डिसीजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही नाम पे लिया जाता है. तो ये कैसे रूल करेंगे, कंट्रोल करेंगे? ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट्स टू हिम, है ना. तो ये क्या हो गया? या तो डायरेक्टली और सबऑर्डिनेट ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. समझ में आ रही है? ठीक है. तो जो पहली बात की जो एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं, उस एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है? तो एक सामान्य शब्दों में, सामान्य लिटरल जो इसका मीनिंग दिखेगा, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, है ना. तो एग्जीक्यूट क्या एग्जीक्यूट आप करते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या है? तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन हो गए, तो जैसे लेजिस्लेचर हो गया, तो लेजिस्लेचर हो गया तो उसका काम क्या है? टू लेजिस्लेट ए लॉ, टू फ्रेम ए लॉ. जुडिशरी का क्या काम हो गया? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. और इसका आपका क्या काम हो गया? अब जो रेस्ट, जो रेसिड्यू जो फंक्शंस हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन. क्लियर हो गया? तो इसी को कहते हैं आपको कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका ये क्या है? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दूसरी बात, जो आपका आर्टिकल 52 है, वो ये कहता है there shall be a president of India. ठीक है. अब ये जो वर्ड शैल है, ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो होगा ही होगा, है ना. तो देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि राष्ट्रपति का है वो होगा ही होगा. मतलब कि ये पोस्ट क्या है? ये वैकेंट नहीं इनको रखना है. दूसरी बात कि ये प्रेसिडेंट जो है, ये क्या हो गए? यहीं से ये पता चल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो गए. समझ में आ रहा है? मतलब किसको किसी स्टैट्यूट से ये नहीं बनाया जाए. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कह रहा है कि दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ईदर डायरेक्टली और विद द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. ठीक है. इसके अलावा और क्या कहते हैं कि जैसे विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी, मतलब ही इज द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, है ना. ये क्या है? सुप्रीम कमांड क्या हो गया? डिफेंस फोर्सेस के हो गए. ठीक है. तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है. और इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, तो दो तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं नॉमिनल हेड, दूसरे को बोलते हैं
रियल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब हो गया डी ज़्यूरे, और रियल हेड का मतलब हो गया डी फैक्टो, है ना। तो डी ज़्यूरे का मतलब हो गया कि नॉमिनल हेड, तो डी ज़्यूरे मतलब नाम मात्र के। तो अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके विषय में क्या है कि ये नॉमिनल हेड है, और रियल जो पावर है, जो रियल हेड है, वो कौन हो जाते हैं आपके पीएम के। क्योंकि पीएम को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं डिफाइन करता है। प्राइम मिनिस्टर को वो क्या कहता है कि दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो क्या हो गए, हेड हो गए। ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ये। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो हो गए प्राइम मिनिस्टर, ये हो गए कि आपके रियल हेड, है ना। और दूसरा आप देखिए कि जो हम लोग की जो पार्लियामेंट, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। दूसरी बात की और हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये क्या होते हैं, ये चुने जाते हैं, और ये फिर चुन के क्या करते हैं, अपना ही लीडर, उसको ये क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और वो लीडर जो होता है वही कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे कि आप क्या, अभी जैसे जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो जितने ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये लोग चुन के क्या करेंगे, अपना लीडर जो है वो तय करेंगे, और वो लीडर जो भी मान लीजिए कि जिसकी मेजोरिटी आती है वो क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब इसमें ये चीज को समझिए कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये चुन के आए, ठीक है, और ये चुन के आए, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्या कहलाएंगे, ये आपके लेजिस्लेचर, जो आपका लेजिस्लेचर, जैसे यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट, उस लेजिस्लेचर में ये क्या करेंगे, लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेटिव फंक्शन। और ठीक उसी समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो सरकार जो बनेगी, जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी चुन के आ रहे हैं। तो उनके साथ ये दो जो है, ये कैपेसिटी में उनको काम करना होता है, एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे और एक लेजिस्लेचर के तौर पे। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब क्या, अभी बोले ना डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव किसको बुलाता है, रियल एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister, and they are collectively responsible to parliament, हाँ, very good, collectively responsible to Lok Sabha या हाउस ऑफ द पीपल। अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट वो नहीं है। पार्लियामेंट के लिए वो नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपल। अब इस चीज को समझिए कि एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, लेजिस्लेचर के लिए। तो एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है,
इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल किसके ऊपर है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के लिए आप अकाउंटेबल हैं, आप आंसरेबल हैं, और आपको कहां आंसर करना है? हाउस में, लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में। ठीक है? और कैसे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है? और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब है कि दे हैव टू swim together or sink together। मतलब या तो उनको क्या करना है, एक साथ पार कर जाइए, नहीं तो एक साथ डूब जाइए। कहने का ये मतलब हुआ कि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी एक मिनिस्टर की भी अगर कहीं गलती हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या होंगे? वो ये दोषी माने जाएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अब जैसे तभी तो जैसे कि हेड ऑफ द, मान लीजिए कि गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो क्या इसका अर्थ निकला है? हाँ, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या हो जाएगा? हाँ, वो रद्द हो जाएगा। ठीक है? तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद ये आ जाएगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग ये जो कह रहे हैं ये प्रेसिडेंट। ठीक है? इसके बाद से यही जो होता है हमारा एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंस भी आपका एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो सबसे जो हमारा सीनियर मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी हो गया वो कौन हो गया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो सेकंड डिग्निटरी होता है वो कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो तीसरा पोजीशन होता है वो किसका होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मतलब आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो गया। ठीक है? चौथा जो पोजीशन आ जाता है वो आ जाता है किसका? गवर्नर्स का विद इन द स्टेट, है ना? उसके बाद से नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आपका क्या है? किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? तो ये क्या होता है? एक सेरेमोनियल जो है। दूसरी बात की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक सेरेमोनियल हेड नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मान लीजिए कि कोई सेरेमनी हो रही है तो उसमें अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो गए? वो सीनियर मोस्ट हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए। अगर तो एक जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट जिसको हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट या प्रोटोकॉल, उसको सामान्य भाषा में आप कहिए, उसमें सीनियर मोस्ट कौन हो गए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? दूसरी बात की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपके, अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि जैसे आप लोग पढ़े हुए कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हो गए? 3 हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव सारे फंक्शंस जो है प्रेसिडेंट के ही नाम पे लिए जाते हैं, तो इनको एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं है। दूसरा कि इनके पास जो है एक लेजिस्लेटिव पावर भी है। पावर्स तो इनको बहुत सारा है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब अंडर आर्टिकल 123, जिसमें ये क्या करते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दोनों हाउस जो है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लीजिए कि वो अगर हाउस अभी सेशन में नहीं है, तो हाउस अगर सेशन में नहीं है तो इस कॉन्टेक्स्ट में या इस समय में, इस जैसे कि में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो क्या करे कि अपने लेजिस्लेटिव पावर जो आर्टिकल 123 के अंतर्गत इनको मिला है, इसका यूज करके ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास कर सकते हैं। हाँ, ड्यूरेशन, फिर उसके बाद उसको लाइन
रैंकिंग को, अच्छा रैंकिंग को आपको लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है कि रैंकिंग प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा हो गए गवर्नर्स विद इन द स्टेट, पांचवा हो गया इसके बाद से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिक्स में आ जाएंगे आपके फॉर्मर्स प्रेसिडेंट्स, सेवेंथ में आ जाएंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, 7A में आ जाएंगे आपके भारत रत्न अवार्डी, ठीक है, इन लोगों को भारत रत्न जो अवार्ड मिलता है ये भी इसी रैंक के होगा, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के, ठीक है। और भी एक लिस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें है कि गवर्नर्स में जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर किसी स्टेट में, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार हो गया, स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है, तो कैबिनेट रैंक का अगर कोई मिनिस्टर आए हुए हैं तो इस स्टेट में जो सीनियरिटी होगी वो चीफ मिनिस्टर की होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के केस में नहीं, प्राइम मिनिस्टर से दिया है। हाँ, लेकिन अगर कैबिनेट रैंक के अगर मिनिस्टर दिया है तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपने स्टेट में वो सीनियर होगी। लेकिन जैसे ही आउटसाइड दूसरे अगर स्टेट में जा रहा है तो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर चीफ गवर्नर विद इन द स्टेट ऑलवेज गवर्नर। हाँ, गवर्नर का भी वही पोजीशन है जो प्रेसिडेंट का, ही इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले वो एग्जीक्यूटिव है, हाँ विद इन द स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। गवर्नर आ जाए तो कहां तो सब पे भारी पड़ जाएंगे, तभी तो इनको फोर्स है गवर्नर्स विद इन द स्टेट, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल नहीं, वो लोग तो बहुत अटॉर्नी जनरल अभी 5-6 में अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कहते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चौथा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो फिर अगेन ये क्लासिफिकेशन किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, ठीक है। और ये जो है ये सीनियरिटी जूनियरिटी पे ये नहीं है, इसको मेन बोला जाता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। अगर कोई सेरेमनी हो रही है या इस तरह से, इस ऑर्डर में इनको ये प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसको आप सीनियरिटी से कैसे जज कीजिएगा इसको समझिए। ये प्रैक्टिसेस हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। जैसे वहां पे जुडिशरी से ज्यादा कौन पावरफुल है, पार्लियामेंट। इसी को ऐसे समझिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे हम लोग 5वां पोजीशन दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ किसको दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों को अगर मान लीजिए कि आपको अगर हटाना है, रिमूव करना है, किसको हटाना ज्यादा आसान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू मेजॉरिटी। लेकिन इनको अगर हटाना पड़ेगा आपको तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2/3 मेजॉरिटी, अभी मेजॉरिटी बता रहे हैं आप लोगों को, उसके तहत आपको उनको हटाना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा कठिन है। दूसरी बात है कि जैसे कि और भी आप देखिए प्रोटोकॉल्स में, तो ये एक सेरिमोनियल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर ये क्या कहते हैं कि नेशनल कोई मान लीजिए कि कोई और ये फंक्शंस वगैरह होता है ना, तो उसमें जैसे ये टेबल या कोई चेयर लगा, इसलिए इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये समझिए, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही है इनको, और क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है, और तीसरा इनको कुछ जुडिशियल पावर भी दिया जाता है। जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर्स का ये मतलब हो गया, अब देखिए गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन है तो तीनों पावर इनको मिलेगा। एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, कानून ये बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये किसका। दूसरी बात की एक और आप जानते होंगे कि जो पार्लियामेंट आप कहते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब भी सेशन स्टार्ट होगा, हर एक साल आप देखिएगा जब स्टार्ट में एक स्पेशल एड्रेस होता है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और ये क्या, प्रेसिडेंट का जो स्पेशल एड्रेस है, ये कोई आपका कस्टम नहीं है,
ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि वो करना ही है, समझ में आ रहा है, स्पेशल एड्रेस जो है वो करना ही है। और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या किया जाता है, उसका उसमें वर्णन किया जाता है। अब आप आ जाइए फर्स्ट स्लाइड पे। ये कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या है, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है इसका दायरा बहुत वाइडर है, इसलिए इसको कैसे इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको क्या कहा गया कि लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो, इन दोनों के बाद जो रेसिड्यू है वो क्या हो गया, सारे आपके क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं है। तो और दूसरी बात कि एग्जीक्यूटिव हेड हो गया, पार्लियामेंट का मतलब ये प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर भी दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया गया, और गवर्नमेंट का जो तीसरा ऑर्गन है, क्योंकि इनको और क्या कहा गया, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या हो गया, संवैधानिक प्रमुख भी हो गया आपके। तो बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही आल्सो एंजॉय सर्टेन जुडिशियल पावर्स। इसमें इनको आर्टिकल 72 के अंतर्गत इनको कुछ पावर दिया गया जिसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर। इसको लेकर भी कुछ डिबेट है। डिबेट इस कनेक्शन में है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पार्डनिंग पावर है ये इनफैक्ट ये इनका एग्जीक्यूटिव पावर ही है, ठीक है। लेकिन मतलब ओवरऑल जब इस पे ये पार्डनिंग पावर, क्योंकि इसमें पार्डनिंग पावर का मतलब ये है कि क्षमा दान की शक्ति। तो अगर मान लीजिए कि आपको डेथ सेंटेंस भी है, तो डेथ सेंटेंस भी अगर आपको दिया गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, आपके डेथ सेंटेंस को वो क्या कर सकते हैं कि वो क्षमादान कर सकते हैं। अब उसमें वो कई तरह का है कि जैसे उसमें रिस्पाइट है, रिप्राइव है, कम्यूट करना है ना। अब चाहिए तो वो इस सजा को, आपके जो डेथ सेंटेंस है उस डेथ सेंटेंस को, जैसे कि उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको जो बाइज्जत बरी जिसको कहते हैं कि कंप्लीटली क्रैश करना, वो भी कर सकते हैं। ये इनको आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये पावर है, पार्डनिंग पावर। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये जुडिशियल पावर ही है। जुडिशियल पावर क्योंकि किससे संबंधित है ये हाँ, ये न्याय है। इसमें अगर कोर्ट मार्शल भी अगर किसी का हुआ है तो वो भी ये क्षमादान जो है। दूसरी बात कि ये जो पार्डनिंग पावर है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ये किसी इंडिविजुअल का ये राइट नहीं है, इस चीज को समझिए। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये आपका अधिकार है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको, जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य जो है, मतलब आप किसी जिले में है और कोई न्यायालय ने आपको दंड दिया, तो आपने उसको चुनौती दिया, कहाँ दिया, हाई कोर्ट में दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन मान लीजिए आपके फेवर में नहीं आया, फिर आपने क्या किया, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, फिर चैलेंज किया उस डिसीजन को, फिर से उसको फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। इसके बाद जो है आप जो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ये जो आप जाते हैं ये किस ग्राउंड पे, मर्सी। हाँ, ये क्या है, आप मर्सी के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया जिसमें आप चले जाते थे, ऐसा आर्टिकल क्षमा याचना। तो ये क्या, एक तरह की याचना हो गई, समझ में आ रहा है, ये आपका अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वो पार्डनिंग पावर के अंतर्गत अगर आपको ये मान लीजिए कि आपको जो सजा दिया गया है, डेथ सेंटेंस है या कुछ, उसको क्या कर रहे हैं कि अगर मतलब आपको क्षमादान कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति का क्या है, ये शक्ति अधिकार है। अब फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस पार्डनिंग पावर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और नॉट। जुडिशियल रिव्यू आप लोग को पढ़ाए हुए हैं स्टार्ट में। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, 32 टू 26, ये क्या है, जुडिशियरी एक तरह से क्या करता है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको कहते हैं, या न्यायिक समीक्षा है ना। तो जुडिशियरी क्या करता है, एग्जामिन्स करता है द वैलिडिटी ऑफ
द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वो चेक करता है। तो वो ये कर रहे हैं कि क्या ये पार्डनिंग पावर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। तो इसका ये आंसर है कि ये जो पार्डनिंग पावर है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है कौन, कोर्ट। लेकिन ये जो डिसीजन जो लिया गया ये रेलिवेंट मैटर्स है या नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कि जिसपे राष्ट्रपति जो निर्णय लिए कि इनको क्षमादान कर दिया जाए, तो जो क्षमादान किया जाए तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो जो रेलिवेंट मैटर्स है वो क्या है, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया? तो इसलिए जो गवर्नमेंट के तीनों जो ऑर्गन हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इससे तीनों से डेराइव पावर किसको मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेजिस्लेटिव पावर भी होगा, एग्जीक्यूटिव हेड तो है ही है वो, और आपको जुडिशियल पावर। अब इसके विषय में जैसे ये जुडिशियल पावर है कि एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसा कि आपको होता है कि कुछ लोग का मानना होता है कि जो 72 के अंतर्गत की पावर है ये इनका एक नॉर्मल एक पावर है, इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव जो है दायरे में रखिए। लेकिन मेजॉरिटी जो है इस ओपिनियन के लोग हैं कि ये एक जुडिशियल पावर ही है, और जुडिशियल पावर के तहत क्या है, और ये जो जुडिशियल पावर जो पार्डनिंग पावर है ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं है, लेकिन जो रेलिवेंट मैटर जिस मैटर पे है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू का वो सब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा कि ये क्या होता है, एक मर्सी पटिशन है, मतलब ये क्या है, एक आपका एक दया मतलब के तौर पे या क्षमा जो है ये याचना करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल 32 से इसकी सिमिलैरिटी को ढूंढने लगी है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और 72 के अंतर्गत आप सीधे जो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। नहीं, ये क्या है, आपका एक मर्सी है, वो नहीं भी इसको चाहे तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर आता है आपका एक टर्म मेजॉरिटी। पहले इसको समझ लीजिए। मेजॉरिटी जो है मूल रूप से दो तरह का होता है, सिंपल और स्पेशल। सिंपल मेजॉरिटी इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यही दो तरह की मेजॉरिटी जो है वो आपको बताई गई है, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। इसके अलावे दो और मेजॉरिटी है, जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ये सिग्निफाई करता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है जिसको 272 सीटें आ गई, 272 प्लस या 272 जैसे। ठीक है। तो 272 इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। ठीक है। तो क्या हो गया, वो उसको कहेंगे कि पूर्ण बहुमत की वो सरकार होगी, और ये केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। किस चीज को, राजनीतिक स्थिरता को ये दर्शाता है। ठीक है। और इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। क्लियर हो गया? उसके बाद से आपका सिंपल मेजॉरिटी जो है या फंक्शनल मेजॉरिटी है, जितने आपके ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है, वो सब आपके सिंपल मेजॉरिटी से क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं। दूसरी बात कि कोई भी मान लीजिए कि कानून बनाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, एक बिल है उसकी 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग से, ये आप लोगों को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे।
अभी सामान्य तौर पे ये समझिए कि दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में अगर कोई बिल है उसको क्या किया जाता है, उसको पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद से राज्यसभा में ले गया गया और फिर फाइनली राष्ट्रपति का उस पर क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो वो क्या बन गया, कानून, है ना, वो एक्ट बन गया। अब इस प्रक्रिया में जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई स्पेशलिटी नहीं हो, जैसे कि आपका मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, एक स्पेशल। ऑर्डिनरी मतलब एक साधारण कोई कानून आपको बनाना है, तो ये कानून जो है ये सिंपल और फंक्शनल मेजोरिटी से ये क्या होता है, ये बनता है, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसलिए ये काफी ध्यान में ये समझिएगा। अब इसमें है कि जो लोग वहां पे गए, कौन लोग, जो मेंबर हो गए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में, तो लोकसभा में अगर क्या कोई कानून पास करना है और लोकसभा में टोटल जो है वो मेंबर्स कितने होते हैं, 543। अब इसमें मान लीजिए कि किसी गिवन डे जिस दिन आपको बिल जो है वो पास करना है, उस दिन जो लोग पहुंचे वो हो गए कितने, 300 क्या हो गए प्रेजेंट। इन 300 में जो वोटिंग में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो है 50 लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए। तो 250 अगर क्या कर रहे हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो आपका पास करने के लिए कितने आपको मेंबर्स का आपको चाहिए, 50% प्लस 1 तो 126। 126 लोग अगर आपके फेवर में वोट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या करना है कि टोटल कितने मेंबर है, 543 और प्रेजेंट कितने हुए, 300 या 300 है, और वोटिंग प्रोसेस में अगर 250 पार्टिसिपेट किए, 50 लोग क्या किए, एब्सटेंड कर गए। एब्सटेंड कर गए मतलब कि तो लोग वोट में पार्टिसिपेट नहीं किए, या मान लीजिए प्रेजेंट ही है और वोटिंग जो है उसमें वोट उन्होंने नहीं किया या वॉकआउट कर दिया या जो भी किया, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब कि उनको प्रेजेंट ही होने से नहीं काम चलेगा, उनको वोट करना हो। समझ में आ रहा है। तो ये और ठीक यही प्रोसेस राज्यसभा में, एंड देन फाइनली इसको क्या कहते हैं, सिंपल। हाँ कुछ नहीं, ठीक, ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब बताइए जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे बनती है, सिंपल मेजोरिटी से कि स्पेशल मेजोरिटी से? तो सारे लोग कराना है सर, सिंपल की स्पेशल नहीं, यही तो पूछ रहा है। स्पेशल आप समझ लीजिए कि 2/3, 2/3, बस ये समझ लीजिए। सिंपल होगा क्योंकि हाफ से +1 लेता है। अब इसको समझिए कि गवर्नमेंट का क्या है कि अब इसमें ये कहा जाता है कि दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसके बाद एक दो टर्म और आता है इसमें, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दो इसमें टर्म है, लेकिन अब इसमें ये समझिए कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया, इसको डिफाइन किया गया। अब इसमें क्या कि एज लॉन्ग एज, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम है कि दैट इट गिव्स एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके साथ। दूसरी बात कि एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ठीक है।
ये कब तक रहेंगे? समझ में आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कब तक रहेंगे? The Council of Ministers, they are appointed by the President of India, और उसके बाद से they enjoy their power कब तक? As long as ये जैसे नहीं during the pleasure of the President तो है, वो सही कर। The Council of Ministers shall enjoy exercise their power during the pleasure of the president। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का यहां मतलब हो गया कि एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अब कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमको कॉन्फिडेंस है किस चीज का? मतलब विश्वास है ना, मेजॉरिटी का। तो जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, इवन दो इट इज मेंशन्ड दैट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का ये मतलब हो गया कि जब तक कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी राष्ट्रपति महोदय जो हटा सकते हैं, नहीं। समझिए इस चीज को। इनको जब तक क्या है, कॉन्फिडेंस है हाउस में। अगर हाउस में कॉन्फिडेंस है, इनको नहीं हटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब है कि जब ऑपोजिट, अब इसमें दो लोग हो गए, एक क्या हो गया, एक रूलिंग आपका जो, या फिर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, या रूलिंग, आपको ये कह लीजिए रूलिंग कोएलिशन कह लीजिए, ठीक है। रूलिंग कोएलिशन, रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी कह लीजिए, ठीक है। अगर वन पार्टी पे अगर मेजोरिटी है, तो इसको अगर मेजोरिटी है, तो ये अगर मोशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और अगर अपोजिशन इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस। सामने वाले के पास कम सीट और अपोजिशन बोल रही है। हाँ, अब इसको ये कहते हैं, तो इट क्लासिफाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हु इंट्रोड्यूसेस द मोशन। समझ में आया? कौन मोशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस ग्राउंड पे इन दोनों में फर्क होता है। अगर रूलिंग पार्टी है, वो इंट्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या कहेगी कि दैट वी हैव द कॉन्फिडेंस इन द हाउस। एग्जांपल ले सकते हैं, जब वो आरजेडी के साथ थी, जब वो अलग हुआ तो बीजेपी ने मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया हो। अलग हुआ तो बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई होगी। बीजेपी ले आई कि नहीं, ये कैसे अब तक किया उसमें? बीजेपी उसके साथ जब अगर विपक्ष में वो की ना, यही अगर कहे कि हमको कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मोशन लाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट को गिराने के लिए कहा गया। समझ में आ रहा है? जैसे आप इस चीज को अभी समझ लगता है, जैसे अभी लास्ट ईयर जो है इसी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो अभी प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, इवन दो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये अपोजिशन का एक राइट है, उसका अधिकार है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के आपको क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है किस चीज का, हाउस का। अब यहाँ क्या कहना है कि दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में, और ये मोशन जो है केवल और केवल लोकसभा में जो है वही पारित होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार कैसे बनती और बिगड़ती है, तो लोकसभा में। अगर यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पे तो अब है कि मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस अगर कर रहा है, तो रूलिंग पार्टी अगर कह रही है तो वो क्या कहेगी कि कॉन्फिडेंस है। और अगर अपोजिशन इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या कह रहा है कि आप में हमको नो कॉन्फिडेंस है। समझ में आ गया? हाँ, तो अब है कि अब इसमें कितने तरह की गवर्नमेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो
अब जैसा कि आपको हमने ये बताया कि 272 जो है अगर आप ला रहे हैं तो क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको गवर्नमेंट को ही मिल रही है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब हो गया कि पूर्ण बहुमत। अगर किसी एक पार्टी को अगर 272 जो सीटें आ जाती हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा भी सिचुएशन है और ऐसी भी सरकारें बनी हैं कि जिनका क्या है, सिंगल पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसका क्या है, मान लीजिए कि उसको 250 या फिर 225 ऐसे उसको क्या है, सीट्स आएगी, ठीक है। अब उसको मेजॉरिटी के लिए जैसे 225 अगर है तो उसको 272 लाना होगा। तो 272 के लिए उसको कितना और सीट जो है चाहिए, 47। अब 47 सीट्स जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, ये हो सकता है कि दूसरी कोई पार्टी जो है वो क्या करे, इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका है कि आप मिलके क्या करें, एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो है वो मिलके क्या करें, एक कॉमन, एक अपना एक क्या उन लोगों ने बनाया, एक गवर्नमेंट का एक रूल करने का एक एजेंडा बनाएंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सरकार जो अपना ये चलाएंगे, ठीक है। तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ, उसमें वो सारे जो जो मतलब पार्टीज होगी वो क्या हो गई, वो उसके एक कंपोनेंट हो गए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। यहां है कि एक ही पार्टी है जिसको 250 या 225 सीट आ रही है, उसको 272 चाहिए, तो उसको 47 सीट्स जो है वो मैनेज करना है। तो वो क्या कर सकते हैं, उसके पास और ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है कि वो हाउस में ये कहे कि दैट वी हैव अ कॉन्फिडेंस इन द हाउस, और उसमें क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग, अभी आपको हमने बताया प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिस दिन कॉन्फिडेंस जो मोशन पास हो रहा है, अगर 47 लोग दूसरे किसी पार्टी के लोग एब्सटेंड कर जाए या इनके फेवर में वोट कर दें या उस दिन प्रेजेंट रहे और वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करें, तो गवर्नमेंट इतनी क्या हो जाएगी, वो बच जाएगी, उतना नहीं बन जाएगा। तो इस ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल आपको है 1991 में एक गवर्नमेंट बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव, तो उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, की मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है, तो उसको 20-25 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी मतलब शॉर्ट, तो वो लोग जो है अदर वो पॉलिटिकल पार्टी से वो क्या करती है, वो संपर्क करना करती हैं कि आप हमको जो है मदद कीजिए, या फिर किसी मतलब वो मुद्दे पे उनको मदद करती है, या किसी भी वजह से वो लोग मान लीजिए कि एब्सेंट हो गए। इसीलिए जिस दिन वोटिंग होता है कॉन्फिडेंस को, दिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो है वो हाउस में रहे और वो वोट करें। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट क्या हो गया कि कई पार्टियां मिलकर क्या की, एक गठबंधन बनाई और इनका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन। तीसरा होता है इसमें एक, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो गई, और इसके अलावा एक और इसमें एक है कि कुछ गवर्नमेंट्स जो ऐसी बनती हैं जिसमें क्या है कि कई पार्टियां हैं उसमें है, और उसमें एक पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, हम आपको मदद कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। बताइए इसका क्या फायदा होगा उसको। मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन जाएगी, मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तो इसमें क्या उसको फायदा होगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा। वो दो कैपेसिटी में काम करेंगी, एक तो वो सरकार को सपोर्ट की है,
तो वो रूलिंग पार्टी के तरह कोई भी पॉलिसी और किसी भी फ्रेमवर्क जो भी आप मतलब डिटरमाइन करेंगे, पॉलिसी लॉ या कुछ भी, उसमें उसका क्या है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट से रहेगा। दूसरा, वो अपोजिशन जो है उसका भी वो काम निभाएंगे, जहां विरोध करना हुआ आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी में, बिकॉज वी आर नॉट देयर इन द गवर्नमेंट, then we are not responsible for this collective responsibility is not ours. बीजेडी शायद ऐसे किसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे, जैसे आपका, हाँ नहीं अब एट प्रेजेंट नहीं, बहुत सारे। किसमें? पाकिस्तान का छोड़िए ना, यहाँ पे वहाँ पे डेमोक्रेसी अपने यहाँ जितना बढ़िया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, जो पाकिस्तान में चला जाता है। हाँ नहीं पता है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे आप 1996 में आप एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट बनी थी, गुजरात की गवर्नमेंट बनी थी, या फिर ऐसे लोग। इसमें क्या था, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सपोर्ट से ये लोग बने थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया, बाहर से क्या किया था, वो सपोर्ट किया। तो उसमें ये होता है कि आपके पास क्या होता है, तो आपको जो है वो दो कैपेसिटी में अब उसमें है कि आप पावर में भी हैं और आप अपोजिशन का भी रोल निभा रहे हैं। मतलब इसको आप सामान्य शब्दों में ये समझिए कि आपके पास विपक्ष वाला जो है वो भी तेवर रहता है और आप सत्ता का सुख भी ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अपोजिशन वाला भी है और आपको गवर्नमेंट वाला भी, और क्योंकि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल हम है ही नहीं है। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो आपने ये पढ़ा, उसमें ये क्या है कि ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, तो ये लेजिस्लेचर का ये फंक्शन जो है वो आपको, तो अब इस तरह से कि वो क्या किए कि वो गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन में उनका क्या है, वो पार्टिसिपेशन नहीं है। उनका कहाँ पे है, हाउस में। हाउस में हम सपोर्ट कर रहे हैं, इससे क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बन गई है। क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। तो अब ये इस तरह की ये गवर्नमेंट है। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट समझे कि नहीं आप लोग? क्या होता है एक बार कोई बताएगा? हाउस में कंप्लीट करने वोटिंग में पास कर देना है, अल्पमत की सरकार इसको कहते हैं, है ना, माने माइनॉरिटी गवर्नमेंट। नॉर्मली इंडिया जैसा जो डाइवर्सिफाइड आपका जैसे ये स्टेट है, इसमें जो है एब्सोल्यूट सिंगल में जो मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी जो है, ये बहुत मुश्किल से, मतलब किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलना ये बहुत कठिन काम। आप लास्ट अगर देखिए तो 1984 में सिंगल पार्टी को ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी 1984 में, और उसको ये बोला भी गया था कि मतलब इनके असोसिएशन के बाद इंदिरा जी के एक तरह का वो सिंपैथी जो हो। उसके बाद आप देखिए कि फिर अब उतनी मतलब आप समझिए कि मेजॉरिटी जो है सुपर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, और फिर वही इलेक्शन होता है 1989 में। उसमें क्या होता है, किसी भी पार्टी को जो बहुमत नहीं मिलता है, और उसके बाद से किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, नेशनल गवर्नमेंट उसमें फ्रेम की। फिर उसके बाद से आप 91 में देखिए तो फिर वही जो टीवी नरसिम्हा राव की वो क्या थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। 96 में आप देखिए अगेन जो है कि गवर्नमेंट आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन वो 13 दिनों तक चली, लेकिन वो भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी, बहुमत नहीं वो साबित कर पाया। फिर उसके बाद से एच.डी. देवेगौड़ा बने, तो उसमें आप देखिए कि कई लोग जो है उसमें एक कोएलिशन मिलके बना। फिर 98 में इनका बना गवर्नमेंट, वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट बना, तो कोएलिशन और 13 महीने तक गवर्नमेंट वो चली, और यही वोटिंग में आपका जो है एक वोट से उनका जो है सो ये गवर्नमेंट गिर गया 269 एंड 270। अभी उसके बाद आप फिर देखिए फिर से जो गवर्नमेंट बनी एनडीए की, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, लेकिन उसको भी 182 सीट था। तो एक पार्टी को मेजॉरिटी, उन्होंने क्या किया, एक अलायंस बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर उसके बाद से आप देखिए तो जो 2004 में वो यूपीए अलायंस बना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 2009 में अगेन मेजॉरिटी नहीं मिली, तो किसको, एक अलायंस को मिला मेजॉरिटी। अब इसमें है कि दो तरह के अलायंस है कि प्री पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस मतलब कि इलेक्शन के पहले ये अलायंस बना। दूसरा है पोस्ट पोल अलायंस। तो
तो या तो अगर मान लीजिए कि जो किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर क्या मिलता है, मेजोरिटी मिलता है, तो उसको प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अगर वो प्री पोल अलायंस है, कोई गठबंधन है लेकिन इलेक्शन के पहले है, तो इसमें क्या है कि उस अलायंस को बुलाया जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि पोस्ट पोल अलायंस था। पोस्ट पोल अलायंस क्या कि इलेक्शन के बाद वो अलायंस बना। तो अब दो अलायंस अगर है तो प्री पोल अलायंस जो है इसको जो है वो मतलब ये, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, ऐसा उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। वो चाहे तो पोस्ट पोल अलायंस वाले को, मतलब अगर वो इस ओपिनियन में है, ये लोग मेजोरिटी प्रूफ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको हाउस में क्या करना है, मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद से फिर आप देखिए तो फिर 2014 में भी प्री पोल अलायंस था, एनडीए अलायंस, लेकिन एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्या मिला, आपको मेजोरिटी मिला, जैसे कि बीजेपी 2014, अगेन 2019 में मेजोरिटी मिला। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इतने डाइवर्स कंट्री में मेजोरिटी मिलना जो है वो काफी, ये क्या होता है, एक डिफिकल्ट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना सबका एक पॉलिटिकल जो है वो एक, ठीक है। तो अलायंसेस जो है ये आपके, ये गवर्नमेंट जो है ये, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट हुआ, एक ही पार्टी है उसको क्या मिला, उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि समहाउ इट मैनेजेस टू फंक्शन द गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, बिफोर इलेक्शन है, आफ्टर इलेक्शन, ठीक। इसके बाद से ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये कॉन्फिडेंस मोशन। अब आ जाइए मेजोरिटी। तो ये हो गया सिंपल और फंक्शनल मेजोरिटी। तो इस मेजोरिटी से क्या होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट जो आपका जो फ्रेम कर रही है, या गवर्नमेंट आपका जो ये फॉर्म कर रही है, वो क्या है, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हम लोग ये। फिर उसके बाद आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। ये क्या है, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब हो गया, जैसे इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी में भी आप देखिएगा, तो अब इसमें है कि सबसे ज्यादा, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो इम्पीचमेंट होता है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। पहले 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए, 2 टर्म आ गया है यहाँ पे, इम्पीचमेंट और रिमूवल। इम्पीचमेंट जो है वो प्रेसिडेंट का होता है, और जो रिमूवल प्रोसेस है वो किसका है, जजेज का। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो है इसको बोलते हैं महाभियोग, और रिमूवल मतलब कि हटाना। तो इम्पीचमेंट इट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कहीं आप देखिएगा, जैसे आप कुछ बुक्स हो गया, जैसे कि काफी मतलब फेमस बुक है टी.डी. बसु, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्यों लेजिस्लेटिव और क्वाज़ाई जुडिशियल को बता रहा है, पता कि अर्ध न्यायिक हो गई है ना, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि दैट हु रिमूव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है, हु रिमूव्स द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का तरीका है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट क्या है, तो मान लीजिए कि पहले लोकसभा या राज्यसभा, पहली बात कि किसी भी, ये क्या होता है, हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। और उसमें अगर है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो टोटल मेंबरशिप, जैसे कि हाउस ऑफ द पीपल में, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, लोकसभा में
कितना 543। अब 543 तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस तो 243 543, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? कुछ भी एक रेंज में बता दीजिए। आस पास क्या होता है? 361 के करीब हो रहा है। 361 362, चलिए 361, हाँ चलिए 362, ठीक है। सीधे इसको ऐसे कीजिए ना 1000 डिवाइडेड बाई 3, तो इतना तो क्लियर है कि भाई 300 के ऊपर हाँ 362। हाँ तो ठीक तो है, मान गए लोग 362 तो अभी कौन सा हटाना है, ठीक है। अभी तो थियोरेटिकली हम लोग समझ रहे हैं इसको समझ। तो इसमें क्या है कि लोकसभा में टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का कितना 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस आपको मतलब किसमें, और यही राज्यसभा के केस में कितना हो गया 250 2/3 कितना हो गया बताइए 166 के आसपास, ठीक है। अब इसमें देखिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके अलावा भी और होता है कि 25% जो है एटलीस्ट लोग जो है नोटिफाई जो है पहले से करना होगा, इनको नोटिस मतलब इनको नोटिस में देना होगा 14 दिन पहले। 25% जो है इस हाउस के, अगर लोकसभा में आप कर रहे हैं तो इसका कितना है 25% लोग, मतलब इसका डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 25%, आधा का आधा 2 बार कर देना होता है, हाँ 135 के आसपास इतना लोग को इनिशिएट करना हो कि भाई महाभियोग जो है राष्ट्रपति जी के खिलाफ लग रहा है, फिर उसके बाद से इतना प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब ऑन ए गिवन डे, किसी दिए गए दिन पे जिस दिन महाभियोग लागू हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। अच्छा उसके बाद से ये अगर दोनों हाउस में सेपरेटली पास करना है, पहले राज्यसभा में आप इनिशिएट कीजिए या लोकसभा में, ये फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में सेपरेटली इनिशिएट कीजिए और क्या कीजिए आपको पास करना है अलग अलग, लोकसभा में फिर उसके बाद से राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जो है उसके बाद से ये हट जाएंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने में ये जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इसलिए जो इम्पीचमेंट हो गया वो क्या हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गया। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फिर उसके बाद से और क्या होता है इनिशिएट किया जा रहा है, और हाउस में भी आपको वोटिंग इस हिसाब से ये कहते हैं कि क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब ये क्या हो गया कि अर्ध न्याय, मतलब अर्ध न्यायिक जो हो गया प्योरली जुडिशियल। तो ये इनको हटाना एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं है, क्या है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, समझ में आ गया क्लियर है। तो इम्पीचमेंट हो गया, तो अब लोकसभा राज्यसभा दोनों से आप हटा दिए, अगर साबित हो गया तो जैसे ही ये अगर क्या हो जाएगा, ये अगर प्रूफ हो गया, ये मेजॉरिटी अगर आपका क्या है आपने फुलफिल कर दिया, उसी मोमेंट में क्या हो जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हट गए। किसमें हम वही तो बता रहे हैं कि बिल्कुल किया प्रेसिडेंट वोटिंग, तो मिनिमम कितना चाहिए 362 ऑन ए गिवन डे, हम अभी वही तो आ ही रहे थे, ऑन ए गिवन डे जिस दिन महाभियोग लागू उनके ऊपर करना है, उस दिन लोकसभा में 300 लोग आ गए और 300 के 300 लोग भी क्या किए फेवर पे वोट कर, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा बताइए, सोचिए। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि ऑन ए गिवन डे जिस दिन इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट किया गया लोकसभा में, उस दिन लोकसभा के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कितने हैं 300 है, और 300 के 300 जो है वो फेवर में उन लोगों ने वोट कर दिया।
तो क्या होगा? पास हो जाना चाहिए इसमें 21 ये हो जाना चाहिए, हो जाएगा सर, हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सारे लोग इसी वही तो बोल रहे थे, परसेंटेज वोटिंग है अब तो नहीं आएगा। अब क्या बोलना है कि 300 लोग आए, 300 लोग कह रहे हैं कि भाई इनको हटाया जाए, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग आपका तो फुलफिल हो ही रहा है जो आप लोग कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी इनका महाभियोग जो है ये लोग कंफर्म कर दिया जाए। हाँ, बिहार में था ना हटाने के नहीं, बिहार में राष्ट्रपति को दिया लिए, उसी का हाँ? स्पीकर को हटाने के लिए स्पीकर को छोड़िए, अभी राष्ट्रपति उसकी मेजोरिटी अलग होती है, वो छोड़िए, अभी उस पर भी माइली है। हाँ 72 प्लस है तो हो जाएगा। हाँ? यही तो हमसे पूछ रहा है। नहीं हटेंगे, एटलीस्ट 362 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, समझ में आ रहा है? तो कम से कम न्यूनतम जो चाहिए आपको कितना, वो 362 चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर, इतने अवेलेबल है और इतने वोट कर दे तो हो जाएगा। इतने अवेलेबल होना ही है, वही तो हम कह रहे हैं। जैसे कि आपको 100% वोट क्या है आपको मिला, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 300, तो 300 से नहीं होना है। इसे पता करें प्रेजेंट और 362 से हाँ, सारे वोट और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का नॉट लेस देन 2/3 जो है, तो एटलीस्ट इतना वोट तो आपको चाहिए ही चाहिए, समझ में आना। लेकिन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में क्या था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 300 लोग आ गए और 300 लोग किसी भी चीज पे कह दिए कि कानून बनाइए, बनेगा। क्योंकि इसमें क्या करना है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 50% कितना हो जाएगा, 150, 151 लोग चाहिए होंगे। यहाँ 300 का 300 कह रहा है तो कानून तुरंत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में मेजोरिटी में क्या है, ये स्पेशल मेजोरिटी में कि इट रिक्वायर्स टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। तो ये जो है इसको बहुत ध्यान से अब समझे, राष्ट्रपति को हटाना कितना मुश्किल काम है। नहीं, हाँ, अब आप क्या बोल रहे थे, आप बताइए। इसी के लिए पूछा था, कम से कम मिनिमम इतना चाहिए। नहीं, स्पीकर का क्या बोल रहे थे? बिहार में था ना, तो वही मिनिमम 122 सीट चाहिए, उससे कम उससे नहीं हटेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग से नहीं हटेगा, उसी के लिए। हाँ, टोटल मेंबरशिप होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये, क्लियर है ये इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। अब आ जाइए रिमूवल ऑफ जजेज, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज का होता है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4, और ये इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61, इसमें इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, और ये 124 क्लॉज 4। दूसरी बात की ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो शपथ इनको कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो शपथ ये ओथ लेते हैं वो ग्राउंड क्या होता है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इनको ओथ दिलवाते हैं, किसको, प्रेसिडेंट। तो इनको इस ग्राउंड पे कि मतलब हम क्या करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। तो इस ग्राउंड पे ये शपथ लेते हैं, ठीक है। अब जब शपथ लेंगे तो इनको जब इम्पीच किया जाएगा तो किस ग्राउंड पे इम्पीच किया जाएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ग्राउंड होता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम से पूछा, ऑन द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे, और मैनर क्या हो गया, मैनर आप लोगों को बता दिए। तो जब भी इम्पीच किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू मैनर
ग्राउंड्स क्या है, तो किस ग्राउंड्स पे इम्पीच किया गया, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो ओथ लिया वो किस ग्राउंड पे, दैट आई शैल प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किसके, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, बिकॉज ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो इनको जो हम लोग शपथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं तो इस ग्राउंड पे देते हैं। क्लियर हो गया आपको। जबकि जजेस को हटाना है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है या नॉर्मल जो कोई जज है उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या वर्ड हम लोग यूज किए थे, रिमूवल। रिमूवल क्या, ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस हो गया। कैसे, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस इस सेंस में है कि इसको जैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हाउस ऑफ द पीपल में जैसे कि पहले स्टार्ट किए, फिर राज्यसभा में किए, लोकसभा राज्यसभा, या राज्यसभा में इनिशिएट किए या लोकसभा में कहीं से, यहां से पारित हो गया। फिर इसके बाद कहां जाएगा, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के लिए फाइनल सिग्नेचर किसका हुआ, तो किसका सिग्नेचर हुआ, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। इसलिए ये जजेस को कौन हटाते हैं, तो जजेस को अपॉइंट्स कौन करते हैं, हाँ, तो इनको रिमूव कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। और प्रोसेस कैसे, यहां से इनिशिएट हो रहा है। इसलिए ये क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव प्रोसेस जो है इनका रिमूवल है। और इनका ग्राउंड क्या होता है, किस ग्राउंड पे जाते हैं, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। ठीक है, सिद्ध कदाचार और बताइए सक्षम नहीं है अपने ड्यूटी को सक्षम। समझ में आ रहा है, तो इस ग्राउंड पे इनको हटाया जाता है। समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन अभी तक, तो ये जो है इस तरह से, किसको, जस्टिस रामा स्वामी उनके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले ही वो छोड़ दिया। प्रेसिडेंट में अभी तक नहीं, इम्पीचमेंट किसी के खिलाफ नहीं। कौन प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दिया, किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं है इम्पीचमेंट। हाँ, ऐसा जो है मतलब पॉलिटिकल इसमें ये चर्चा हुई थी एक बार में, इनकी गवर्नमेंट थी तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात की कोई सोच भी नहीं सकता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। नहीं, जरूरत है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इतना होगा तब तो, अभी तो हुआ नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि इतना कहाँ अभी तक मिलेगा, ये मेजॉरिटी भी चाहिए। और दूसरी बात की यहाँ अगर हो भी जाए तो राज्यसभा में भी, हाँ, इसीलिए ये दिस इज द रीजन व्हाई दैट यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी इज फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है और एक रिजिडिटी भी है, एक लचीलापन भी है और एक क्या है, दृढ़ता भी है उसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो ये हो गया, तो ये समझ में आ गया, ये क्या था, एक स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपको अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये क्या, आर्टिकल 368। अगेन यहां भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। दूसरा कि ये ज्वाइंट सेशन में नहीं हो सकता है। ज्वाइंट सेशन मतलब कि दोनों हाउस को, नॉर्मली होता क्या है कि राज्यसभा में या फिर किसी एक सदन में अगर मेजॉरिटी नहीं हो, कोई एक कानून मान लीजिए कि उलझ गया इन सेंस कि एक हाउस में पास हो गया, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि एक ज्वाइंट सेशन जो है दोनों लोग को, हाँ। तो अब आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है। अब इसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक तो ये हो गया कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल अगर आपको हटाना है तो आप क्या कीजिएगा, 368 के अंतर्गत वही 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी जो है, और फिर आपको ये उसमें चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें कि अगर आपको कोई फेडरल या फेडरेशन से संबंधित है ना कोई चेंजेस करना है, जैसे कि आप जीएसटी जो आप लोग कहते हैं,
है ना। इसमें आपको 2/3 जो है मेजोरिटी जो है ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ जितनी असेंबलीज हैं उनसे क्या चाहिए, उनका एक अप्रूवल चाहिए, है ना। तो अब कितनी असेंबली है इंडिया में, 28 स्टेट हो गए और तो इन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा कहाँ कहाँ है, एक दिल्ली में है, एक पुडुचेरी में है और अभी तो है नहीं जब वो स्टेट। हाँ, तो अब उसमें 30, तो आपको टोटल कितना हो जाना चाहिए मेजोरिटी के लिए, 16 विधानसभा से वो क्या करना होगा, वही रिपीट हो, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 54 जो है उसी में अगर कोई चेंज करना है ना, ये इस तरह से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो किससे जुड़ा हो, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो, उसमें चेंज करने के लिए केवल 2/3 मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा से नहीं, आपको सारे विधानसभाओं से भी पास करा गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी में भी एक ही स्पेशल, ठीक है। तो मूलतः कितने तरह की मेजोरिटी हो गई, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी में भी फेडरल स्ट्रक्चर अगर कुछ चेंज करना है या इससे संबंधित तो आपको इसमें विधानसभाओं से भी पास करा के लाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मेजोरिटी है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें जो शब्द है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, द देन मेंबर्स, तत्कालीन सदस्य, मतलब कि उस समय नॉर्मली इनके केस में जैसे कि स्पीकर को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो किस तरह से आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये हो गया कि ऑल द 10 मेंबर्स, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, जैसे राज्यसभा में 250, तो 250 हो गया, तो 250 में 10 मेंबर्स का मतलब माइनस वैकेंसीज, ठीक है, मतलब कि कितना सीट वैकेंट रहा, समझ में आ रहा है, वैकेंट कैसे रह गया, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि राज्यसभा के क्या होते हैं, हर साल जो है 1/3 जो है वो क्या होते हैं, और रिटायर होते हैं। दूसरा कि मान लीजिए कि कोई राज्यसभा का सदस्य जो है कहीं चीफ मिनिस्टर बन गया, तो वो सीट जो है वो खाली हो गया जब तक इलेक्शन नहीं है, तो वो वैकेंसीज को हटा दिए, या कहीं मान लीजिए कि कहीं, हाँ सर उसकी लॉटरी सिस्टम होता है किसमें, राज्यसभा में जो मेंबर 1/3 जो चेंज नहीं वो तो मान लीजिए कि वो तो ठीक है लॉटरी सिस्टम, तो जैसे कि वैकेंसीज, वैकेंट अगर सीट होता है एट प्रेजेंट, मान लीजिए कि कल हटाना है वाइस प्रेसिडेंट को, और कल के डेट में टोटल जो हमारा कितना 250 है, तो 10 मेंबर्स कितने हो गए, अगर 10 लोग मान लीजिए उसमें से वैकेंट है तो 240 हो गया हमारा, तो 240 और फिर उसके बाद कितना चाहिए, तो 10 मेंबर्स जो हो गए जो 240 और फिर उसके बाद से मेजोरिटी जो उसमें आपको ये वोट करेगी, इसीलिए इसको इफेक्टिव मेजोरिटी, हाँ वही कह रहे हैं, तो इसमें से इतने वैकेंसीज जो है इन लोग को हटा दीजिए, तो वैकेंसीज हटा के और बाकी जो है इसीलिए इसको इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पीकर को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ तो अब इसमें है कि वैकेंसीज को हटाया गया, जैसे कि कितना सीट वैकेंट रहा है, समझ में आ रहा है, तो और बाकी टोटल कैलकुलेशन, और इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, ऐसा नहीं कि वो प्रेजेंट किए थे, जैसे कि उसमें कैसे था कि 300 अगर प्रेजेंट किए और वोट किए, इसमें वैकेंसीज को हटा के फिर उसको, तो ये इफेक्टिव, हाँ इसीलिए जो वर्ड उसमें यूज किया जाता है कि दैट ऑल द 10 मेंबर्स मतलब तत्कालीन सदस्य, हाँ लोकसभा नहीं राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी बात कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने का मतलब है कि उनको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर आप जो व्यक्ति जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या हो गया, वो बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट जो है वो चेयरपर्सन होगा, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि वो पदेन जो है उसका क्या होगा, उसका ये चेयर। तो इसके लिए जो राज्यसभा के जो हेड होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसके लिए शब्द क्या होता है, चेयरमैन,
और लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इनके लिए शब्द होता है स्पीकर, और उसमें जो सबऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन, और यहाँ डेप्यूटी स्पीकर। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इसी तरह से स्पीकर को, तो ये जो हो गया आपको, ये 4 तरह की ये मेजॉरिटीज होती है। कहा 3 हुआ, सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव। ठीक है, और स्पेशल में भी 2 तरह का, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो विधानसभाओं को। ये क्लियर हो गया? ये इसलिए जरूरी है कि इसका आपको हमेशा यूज जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या इसमें जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये जरूरत है। तो अब समझिए कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा वो ये क्या बोलता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ये जो बोलता है कि पहले तो 1 मैन 1 वोट, दूसरा कि जो भी मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट आएगी, मतलब कि वो जो चुन के आएगी वो क्या करेगी, अपना लीडर जो है वो सेलेक्ट करेगी, और वही लीडर जो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर उसके बाद से जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद से आप ये देखिएगा कि ये जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये और तो इनके पास जो पावर ये होता है, पावर जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है, इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, इज द हेड ऑफ द रिपब्लिक, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। उसके बाद से और क्या है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आल्सो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब संवैधानिक क्या हो गया, ये प्रमुख हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने की वजह से इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के जो जितने ऑर्गन है तो सबका वो उनको पावर मिला है। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है और एग्जीक्यूटिव पावर भी है। और कौन पावर, डिफेंस, वो तो है ही है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि दैट विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी द सुप्रीम कमांड ऑफ द ऑल द डिफेंस फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट। इसमें कि वो होना ही है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जैसा हम लोग ये देखें कि जो जुडिशियल फंक्शन है और लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इसको हटा के और जो भी रेसिटिव है वो सारे फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से इनका ये जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द रिपब्लिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, ऑल द डिसीजंस हैव टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा कि डे ज़्यूरे और डे फैक्टो। तो डे ज़्यूरे मतलब ये नॉमिनल हेड हो गए, और डे फैक्टो मतलब कि रियल कौन हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है। फिर और क्या था, ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कैसे ये हो गया कि दे हैव टू स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। क्या हम ये कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है इसके प्रति, लोकसभा के प्रति, पार्लियामेंट नहीं। अक्सर इसमें लोग टेस्ट यही करते हैं एग्जाम में, एक बार ये यूपीएससी प्रीलिम का भी क्वेश्चन है कि यही स्टेटमेंट उसमें दिया गया कि दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट नहीं, वहां लोकसभा होगा, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन तो होना ही नहीं है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे आपको बताया क्या कि फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गए, उनके जो लीडर होते हैं वही लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट और क्या था, ये हो गया आपको कि जो पार्लियामेंट का एक कंपोनेंट प्रेसिडेंट में, ये अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है दैट यूनियन लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, या पार्लियामेंट जो है ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। फिर क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में, जुडिशियल पावर जिसको आर्टिकल 72 में कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्डनिंग पावर। और पार्डनिंग पावर में भी इसमें है कि ये क्या कर सकते हैं, या तो आपकी सजा को कम कर सकते हैं, जैसे आपको राहत दे दिया गया, आपकी सजा के नेचर को बदला जा सकता है, या उसके बाद से कंप्लीट आपको जिसको कहते हैं ना कि बाइज्जत बरी करना, उसको क्वैश कर दिया जाएगा आपके ऊपर। इवन कोर्ट मार्शल का भी जो केस है, क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम कमांड किसके,
डिफेंस फोर्सेस की, ठीक है। किसमें? छोड़ा गया हो ये पार्डनिंग पावर में, डेथ सेंटेंस में। हाँ, डेथ सेंटेंस में तो कई लोगों को क्वेश्चन करने का भी है उसमें बहुत सारे केसेस में। जैसे कि मान लीजिए कि वो सजा है, अब उसमें ये है कि उसको हटा दिया गया कि नहीं इनके ऊपर जो है कोई आरोप है। हाँ, फेमस क्या इस तरह का एक वैसा कुछ बहुत फेमस, लेकिन ये है वैसा। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जुडिशियल रिव्यू का ये सब्जेक्ट है कि डेथ सेंटेंस तो कई आप लोग जानते हैं, जिसको कई को जो उसमें क्या किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ये चेंज कर दिया गया है ना। मतलब इनके पास ये अथॉरिटी है कि आपको वो मतलब पूरा कंप्लीट जो है वो कर। इसीलिए ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप इस अथॉरिटी का यूज करना है तो जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं। तो अब तो जुडिशियल रिव्यू नहीं, तो जुडिशियल रिव्यू यही तो है कि जुडिशियल रिव्यू की जुडिशरी कैसे एग्जामिन, जुडिशरी जब एग्जामिन करेगी इसका मतलब कि जुडिशियल कंट्रोल, तो जुडिशियल कंट्रोल किसके ऊपर हो जाएगा? किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एंड व्हाट इज आर्टिकल 50? आर्टिकल 50 रिसेंटली आप लोग पढ़े हैं। आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ एग्जीक्यूटिव। तो अब जुडिशियल कंट्रोल इनके इस पावर को लेके वो नहीं, हाँ इसीलिए ये बोला गया कि क्या सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का, कि जो रेलिवेंट मैटर है कि नहीं जिसपे उन्होंने निर्णय लिया, और ये कैसे निर्णय लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो उनके एडवाइस। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस, इनको वो रेलिवेंट चीज बताया गया कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके विषय में हम नहीं जानते, तो आपके विषय में जानने का जो भी मेरे पास जो आधार है वो इनसे जो मिली हुई जानकारी, समझ में आ रहा है? तो इनसे जो मिली हुई जानकारी है वो तथ्य जो हमारे पास आ रहा है वो बोनाफाइड है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि फैब्रिकेट करके या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, या जैसे आप लोग सिटीजनशिप में भी पढ़े थे क्या कि अगर कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो मैटर जो है जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी को लेके जो हम आपको बताए ना कि इसमें आगे आप लोग पढ़िए, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ में भी आ गया अगर पढ़ना हो कभी, तो इसीलिए इसको लेके आर्टिकल 72 को ये अक्सर ये डिबेट होता है कि वेदर इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, क्योंकि ये नॉर्मल जो है एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके भी वो ये कर रहे हैं, लेकिन उसको जुडिशियल पावर में ही कई लोग जो है वो मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? फिर उसके बाद से क्या था? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? क्या जुडिशियल पावर ना बताइए ये, क्योंकि इसको लेके जैसे कि सुप्रीम कमांडेंट, तो सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस कोर्ट मार्शल का केस आ रहा है, तो उसको तो मान लीजिए कि वो क्या है, ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है कि विदाउट जुडिशियल जनरलिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट दैट द सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद से मेजॉरिटी हम लोगों ने देखा कि ये क्या चार तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह का बता रहा है, सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल को क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेजॉरिटी भी। नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अगर लेजिस्लेट करना है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? सिंपल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 हम लोग कह रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसका सिग्निफिकेंस है केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि प्रेजेंट भी है और वोट भी वो कर रहा है, प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेजेंट करना है और वोट करना है। जैसे आप प्रेजेंट किए और प्रेजेंट करके आप वोट नहीं किए, वोट नहीं कास्ट किए या एब्सेंट कर गए, ठीक है, वॉक आउट कर गए, बाहर चले गए, ठीक है, तो वो नहीं काउंट होगा। फिर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस को देखिए। मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को? नहीं, ये किसमें? केवल जो है लोकसभा में। ये इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है और बिगड़ती है कहाँ? लोकसभा में। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। और इसमें जो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये कहा जाता है कि एज लॉन्ग एज, हाँ, तो इसमें एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। दूसरी बात कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक वर्ड ये मिल जाए
that the president is satisfied. इसका मतलब ये होता है इट इज नॉट दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्योंकि ये क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड एंड एडवाइस के लिए क्या करते हैं ये काम, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया आपका कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अब ये कैसे डिफाइन हुआ कि हु इंट्रोड्यूसेस द मोशन। अगर आपको अपोजिशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस, और अगर रूलिंग पार्टी कर रही है तो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या है बताइए तो अगर कम होगा तो 2 वोट करेंगे, पूर्ण बहुमत नहीं होने पर भी अगर हाउस में कम लोग हैं और उतने ही लोग वोटिंग एंड प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग में अगर है तो वो क्या हो जाएगा वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और इसका एग्जांपल क्या है 91 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या हो गया आपका ये इम्पीचमेंट जो हो गया और रिमूवल, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और ये क्या है एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है या क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कि प्रेसिडेंट को जो है किस ग्राउंड पे हटाते हैं तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो किस पे प्रिजर्व प्रोटेक्ट और डिफेंड, तो मैनर आपको ये बता दिया गया और प्रोसेस जो है ये। अब जजेस जो है इनका रिमूवल जो है वो किस ग्राउंड पे होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। और यही जो है ग्राउंड आर्टिकल 124 के अंतर्गत इनको दिया गया है ये जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और हाई कोर्ट के जजेस का भी इन द मैनर एंड इन द ग्राउंड सिमिलर, मतलब जैसे इनको हटाया जाता वैसे ही उनको हटाया जाता। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है 368 में कोई फेडरल सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करना है आपको मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके स्टेट से उन विधानसभाओं से क्या करना है पास करके लाना है, और इफेक्टिव मेजॉरिटी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर को हटाते हैं इसको ऑल द 10 मेंबर्स जो है। इस नोट पे इसको आज जो है आते हैं उस पे भी है। तो इस नोट पे आज क्या है इसको आज क्लोज किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में और इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे।